Good morning, dear students. How are you all? This is Miss Fatima Parveen Akil, your English teacher. Okay, dear grade 10 students, today we're going to start chapter 3 from our first flight book. Okay, now what happens in this? We have two stories here. Okay, two stories about flying. That's the name of the chapter. And within this, we have two parts. The first one has a title of His First Flight, and the author of this is Liam O'Flaherty. The second one is Black Aeroplane, and its author is Frederick Forsyth. Now always remember, dear students, you should remember the name of the authors because it often comes in the examinations to write or describe the author of any of the stories. So today we are going to read the first part, which has a title His First Flight. Now before you read, let's understand this. Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Now here are two stories about flying. देखिए, conquer means to control, to win something. So it's a natural phenomenon. Human beings have always tried, okay, we're going to fly, we're going to go to the moon. Okay, people have been trying a lot of different experiments to reach the sky, to conquer, to go as high as possible. So ये जो हमारा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें दो स्टोरीज हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक चिड़िया के बारे में, एक पक्षी के बारे में जिसका नाम है सी गर्ल. ओके, ये डरता था उड़ने से, इसे डर लगता था कि ये गिर जाएगा, लेकिन इसने अपना जो डर है उसे ख़त्म किया. कैसे किया वो हम इस स्टोरी में आज पढ़ेंगे. ठीक है, सो विद दैट लेट अस बिगिन द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. नाउ इसके जो ऑथर हैं लियम ओफ्लैहर्टी, ओके, ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे. ही बिलोंग्ड टू द ब्रिटेन एंड हिज बर्थ डेट इज 28th of August 1896 and his expiry date was 7th of September 1984. ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और इन्होंने अक्सर लाइफ के बारे में, हैपनिंग्स के बारे में बहुत स्टोरीज लिखी थी जो कि काफ़ी अप्रिशिएट भी की गई थी. So with that, let us begin his first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. Now, the young seagull, एक छोटा सा समुद्री पक्षी जिसका नाम है सीगल. ओके, ये एक लेज पे अकेला बैठा था. अब लेज क्या होता है? दिस इज अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ. अब ये जो पहाड़ होते हैं ना, समंदर के पास पहाड़ है, उनमें जो है पहाड़ का एक हिस्सा है जो थोड़ा आगे को निकला हुआ होता है, जिसपे सपोर्ट है, जिसपे बैठ सकते हैं. सो ये जो पक्षी है इस पे बैठा था. अब इसके जो दो भाई थे एंड बहन थे, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे उड़ना. देखिए जो स्टोरी है इसमें जो सीगल है, इसके जो पेरेंट्स एंड भाई बहन है, इसे एंकरेज करते हैं कि ये भी उड़े, लेकिन इसे डर लगता है. सो हम आगे देखेंगे कि कैसे उड़ेगा फाइनली. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. अफ्रेड मीन्स डर. ये डरता था उनके साथ उड़ने से. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the edge. अब ब्रिंक क्या होता है? ब्रिंक होता है बिल्कुल किनारा. सो जब भी वो अपनी लेज से आगे आता था बिल्कुल किनारे पे, ठीक है, और अपने विंग्स फ्लैप करता था, मतलब अपने जो पंख होते थे उन्हें उठाता था, कोशिश करता था ना उड़ने की. सडनली बहुत डर लगता था इसे. ओके, ये देख के कि इसके सामने आगे जो समंदर है इतना बड़ा फैला हुआ और गहरा है, इसे डर लगता था और ये एकदम पीछे हो जाता था. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे यकीन था, वो ये फील करता था कि उसके जो पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे उड़ने नहीं देंगे. ठीक है, और ये सोचकर अपना सर झुकाना, बेंट मीन्स झुकाना, ठीक है, अपना सर झुका के एकदम पीछे भाग जाता था. Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink,
flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage. उसके सामने उसके जो भाई बहन थे ना, उनके जो पंख थे वो उसके से छोटे थे, लेकिन फिर भी वो ब्रिंक पे जाते थे, मतलब बिल्कुल किनारे पे जाते थे, अपने विंग्स को फ्लैप करते थे एंड देन उड़ जाते थे. He fails to muster up courage. मस्टर क्या होता है? मस्टर का मतलब होता है अपने अंदर हिम्मत खटा करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना. वो नहीं कर पाता था, वो कॉरेज नहीं ला पाता था अपने अंदर, जिससे कि वो कूद कर या वो सडनली उड़ना शुरू कर दे. His father and mother had come around calling to him shrilly. So his parents, his father and mother calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मदर एंड फादर थे, ठीक है, वो अपनी हाई पिच्ड वॉइस में, श्रिली मीन्स हाई पिच, मतलब बहुत बारीक एंड जोर की आवाज में बोल रहे थे, उसे डांट रहे थे. ठीक है. अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, मतलब डांटना था. थ्रेटनिंग मतलब धमका रहे थे कि अगर वो वहीं पर बैठा रहेगा अपनी लेज पर, तो वहीं पर बैठा रहे भूखा प्यासा. स्टार्व, STARVE, स्टार्व मीन्स भूखे प्यासे रहना. ठीक है, कि अगर वो वहीं पर बैठा रहेगा, वो वहीं पर भूखा प्यासा बैठा रहेगा. अगर उसे खाना चाहिए तो उसे वहां से उड़ना पड़ेगा. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब 24 घंटे हो चुके थे उसे इस तरह से वहाँ बैठे हुए. ठीक है. एंड कल का जो दिन गुजरा था उसमें क्या हुआ था? कल के दिन जो है उसके पेरेंट्स जो थे उसके जो है भाई एंड बहन के साथ उड़ रहे थे. उन्हें सिखा रहे थे कि जब पानी की लहरें आती हैं, ठीक है, उनसे बचकर कैसे उड़ना है और मछली को पकड़ना होता है. देखो वो मछली खाते हैं, समुद्री पक्षी है ना, सो समंदर में जितनी भी मछलियाँ आती हैं छोटी बड़ी, वो अपनी बीक से, चोंच से उन्हें पकड़ते थे, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना होता था कि वो पानी में डूब ना जाएं. सो स्किम का मतलब होता है कि बहुत धीरे से पानी की लहरों के ऊपर से उड़ना, लेकिन बिना पानी को छुए. आपने देखा होगा मूवीज में भी कि बहुत नीचे होते हैं बिल्कुल पानी के पास, लेकिन पानी नहीं छूते हैं वो. ठीक है. सो वो ये देख रहा था कि कल ऐसा हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled, raising a proud cackle. Okay, अब देखें यहाँ तक कि उससे जो बड़ा भाई था, कल का जो दिन गुजरा था उसमें उसने अपना पहला शिकार किया था. पहला शिकार उसका क्या था? हेरिंग. एक टाइप की मछली होती है जिसे हिल्सा कहते हैं. ठीक है. एंड देन उसने डिवाउ, ठीक है, DEVOUR, डिवाउ. दिस मीन्स बहुत जल्दी से एकदम खाना, जल्दी खाना. ओके. सो एक रॉक पे खड़े उसने देखा था कि ये सब हुआ है, एंड उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़ोर से, मतलब एक तरह से डिस्क्राइब किया है कि वो खुश थे. कैकल मीन्स एक हंसी, एक टाइप की हंसी जिसमें थोड़ा सा मजाक उड़ाना भी होता है. ठीक है. तो ये लोग जो थे वो इस सीगल का, ये जो पक्षी थे सीगल का मजाक उड़ा रहे थे कि देखो तुम्हारे बड़े भाई ने अपना शिकार भी कर लिया, तुम्हारे छोटे भाई उड़ रहा है, तुम्हारी बहन भी उड़ रही है, पर तुम वहीं खड़े हो. वो उसको एनकरेज करने के लिए ये सब कर रहे थे ताकि उसके दिल में उसके अंदर हिम्मत आए, वो कॉरेज खटा करे एंड वो भी उड़ने की कोशिश करे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब जो पूरी फैमिली थी, the mother, the father and the brothers and sister, वो एक बहुत बड़े पहाड़ से, ठीक है. अब प्लेटू क्या होता है? देखो पहाड़ होते हैं, फिर समंदर होता है, फिर बीच में अगर कोई ज़मीन का हिस्सा बहुत ऊंचा सा होता है उसे हम प्लेटू बोलते हैं. सो उस प्लेटू पे वो चल रहे थे और उसे बार बार टॉन्ट कर रहे थे, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो बुज़दिल है, वो कमज़ोर है, वो उड़ नहीं सकता. ओके. ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे थे ताकि वो उड़े. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south.
He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब देखें धूप निकलने वाली थी और जहाँ पर वो बैठा था उस पर बहुत गर्माई हो रही थी, उसे धूप लग रही थी और उसे और ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। उसने कल रात से कुछ भी खाया नहीं था, वो वहीं पर बैठा था, डर कर के वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो वहीं रह गया था, वो भूखा प्यासा बैठा रहा। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg and with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. अब देखें जो एक आप पिक्चर में देखें जो एक लेज दिखा रखा है, ठीक है। सो उस पे जो सीगल है वो बिल्कुल आता है, बिल्कुल ब्रिंक पे, मतलब बिल्कुल किनारे पे आता है, ठीक है। अपने एक पाँव पे खड़ा होता है, दूसरा पाँव छुपा लेता है अपने पंख के नीचे, अपनी एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी आंख भी बंद कर लेता है, ठीक है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, एंड देन वो ऐसे दिखाता है जैसे वो सो रहा है। प्रिटेंडिंग मीन्स एक फेक एक्टिंग हम करते हैं, ठीक है, जैसे वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. वो इस तरह से खड़ा हुआ जैसे वो सो रहा है, फिर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन उस प्लेट्यू पे सो रहे थे। डोजिंग मीन्स सोना। अब वो कैसे सो रहे थे, उनका जो सर था उन्होंने उसे अपनी नेक में झुका के एक तरह से छुपाते हैं। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें, पक्षी होते हैं जब सोते हैं तो अपनी जो गर्दन होती है बिल्कुल पंख के पास झुका के छुपा के इस तरह से सोते हैं। और उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, प्रीनिंग। प्रीनिंग का मतलब होता है अपने जो फेदर्स होते हैं उनको अपनी चोंच से साफ करना। देखो वो जैसे कुछ फंस जाता है या गंदगी या कुछ भी चुभ जाता है तो वो अपनी चोंच से अपने सारे पंख को साफ कर रहे थे। सो उसके फादर ये कर रहे थे। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसे कौन देख रहा था? Only his mother, उसकी मदर Olney, ठीक है। वो उस प्लेट्यू पे एक थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी हुई थी, ओके। एंड थोड़ी वो उनके पैरों में एक मछली पड़ी थी जिस पे से वो अपनी चोंच से एक एक पीस फाड़ के उतारती थी, मतलब नोच कर उतारती थी, ठीक है, और खा जाती थी। उसके बाद वो अपनी चोंच को जो रॉक था ना पहाड़ उस पे स्क्रैप करती थी। स्क्रैप का मतलब होता है चोंच को लेफ्ट से राइट पे घिसना। और वो घिसते क्यों है? ताकि वो और शार्प हो जाए, ठीक है, मतलब वो तेज करते थे अपनी चोंच को। ये भी आपने देखा होगा अक्सर, जैसे कबूतर हैं, मुर्गियां हैं, वो जब खाना खा रहे होते हैं जब चुगते हैं तो किसी भी हार्ड सरफेस पे अपनी चोंच को, ठीक है, लेफ्ट राइट हिलाकर तेज करते हैं। दैट मीन्स स्क्रैपिंग। Now the sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Now वो देख रहा था और वो पागल हो गया था क्योंकि उसे इतनी भूख लग रही थी और उसे बहुत पसंद था इस तरह से खाने को नोच कर फाड़ना, खाना एंड बार बार अपनी चोंच को रॉक पे स्क्रैप करना। क्यों? वेट करने के लिए। वेट मीन्स शार्पन करने के लिए, तेज करने के लिए। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Go Kola, she screamed back derisively. अब देखें वो रो रहा था, उसे भूख लग रही थी, वो उनसे एक तरह से भीख मांग रहा था कि मुझे खाना दे दो। और वो बहुत ज़ोर से एंड बहुत गुस्से में चिल्लाकर जवाब देती हैं। But he kept calling her plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. वो मांगता रहा क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। एंड सडनली एक दो मिनट के बाद उसमें से एक बहुत ही खुशी से चिल्लाया वो, ठीक है। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, जॉयफुल खुशी से। वो सडनली बहुत खुशी से चिल्लाया। क्यों?
क्योंकि उसकी जो मदर थी उन्होंने मछली का एक पीस उठाया एंड उसकी तरफ उड़कर आ रही थी, ठीक है, मछली का पीस अपने चोंच में पकड़ा और उसकी तरफ आ रही थी। He leaned out, ओके देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द मदर, जिस पे मेरा कर्सर है ये मदर है और इनके चोंच में यहाँ पर, ठीक है, ये मछली का पीस है, ओके, एंड ये हमारा सीगल है जो बिल्कुल देखिए ब्रिंक पे है, ये एक लेज है और जहाँ पर इसके इस वक्त पंजे हैं ये ब्रिंक है, सो ये बिल्कुल किनारा है जिस पे ये था। इसने चोंच खोल रखी थी इस उम्मीद में कि जो ये मदर सीगल है ये इसको जो है ये मछली का पीस दे देंगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across, ठीक है, जब वो आ रही थी वो पूरी कोशिश में था कि वो जल्दी से करीब आ जाए और वो मछली का पीस ले ले उनकी चोंच से। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब देखें वो बिल्कुल करीब आ गई थी, बिल्कुल उसके सामने थी, फिर वो रुक गई। Halt means stop, रुकना। उसके जो पंख थे मोशनलेस हो गए, मतलब हिलना बंद हो गए, और उसकी जो चोंच में मछली का पीस था वो बिल्कुल उसके करीब ही था, लेकिन मदर ने दिया नहीं। वो रुका, एक मोमेंट वो बिल्कुल हैरत में रुका, सोचने लगा कि वो करीब आ गई लेकिन उसने दिया क्यों नहीं, और फिर मैडन्ड बाय हंगर, भूख में पागल हो गया था बिल्कुल, उसने उस मछली के पीस पे झपट्टा मारा, ठीक है, मतलब वो उड़ा, वो उठा, उसने अपने पंजे ब्रिंक पे से उठाए, कहेंगे फिश पे। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his wrist feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब देखें, with a loud scream, ठीक है, जब उसे ये फील हुआ कि वो उड़ने लगा है, बहुत जोर से चिल्लाया, ठीक है, वो उठ गया, वहां ब्रिंक पे से वो उठ गया एंड स्पेस में था। सडनली उसका दिल जैसे रुक गया, उसे डर लग गया, उसे कुछ आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो सारी फीलिंग्स थी ना ये बस 1 मिनट के लिए थी। अगले मोमेंट उसे फील हुआ कि उसके पंख खुल चुके थे, ठीक है, एंड वो उड़ रहा था। हवा का जो झोंका था वो उसकी तरफ आ रहा था, उसके पेट को छुआ, उसके पंखों में हुआ, उसे फील हुआ कि उसके जो पंख थे, जो एजिस थे, वो हवा के झोंकों में से गुजर रहे थे। अब वो गिर नहीं रहा था, ठीक है, अब वो नीचे की ओर गिर नहीं रहा था, रेदर वो डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स वो उड़ रहा था सही से, ठीक है। He was no longer dizzy, ठीक है, he was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब देखें, अब वो डर नहीं रहा था, बस थोड़े से उसे चक्कर से आ रहे थे। देखें, पहली बार छोटा सा था, सीगल था, उड़ रहा था, तो सडनली तेज हवा के झोंकों में उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसे उसका सर घूम रहा है, ठीक है, हम भी अक्सर डिजी हो जाते हैं। आप देखें, अगर आप गोल गोल घूमते रहे, एक मोमेंट आएगा कि आपको चक्कर आएंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आप गिर भी सकते हैं। सो वो तो बेचारा एक पक्षी था, ओके। सो देन उसने अपने विंग्स फड़फड़ाए, फ्लैप हिज विंग्स एंड अगेन अपवर्ड्स, मतलब ऊंचाई की तरफ वो उड़ा बहुत खुशी से। एंड देन उसकी मदर भी उसके पास से गुजरी और अपने पंखों से बहुत जोर की आवाज बनाई उन्होंने, ठीक है, यू नो फ्लैपिंग, फट 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 फट, लाइक फड़फड़ाना। एंड उसने भी बहुत चिल्लाकर
जवाब दिया उनको खुशी में, ये सब खुशी था. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने देखा उसके फादर भी आए, बहुत ज़ोर की आवाज़ निकालते हुए, चिल्लाते हुए खुशी में. उसने देखा उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर उसके पास आ गए थे, ठीक है. curveting, that is leaping like, और सब खुशी में, ऐसा लग रहा था जैसे कूद रहे थे खुशी में. and banking and soaring and diving. आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि पक्षी जब उड़ते हैं कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर डाइव करते हैं, ठीक है. उनके जो डायरेक्शंस होते हैं उड़ने के, कभी पंख बिल्कुल सीधे खोल लेते हैं, कभी उन्हें हिलाते हैं. सो इस तरह से वो बहुत खुशी में सब थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब देखिए वो इस तरह से जो है वो भूल भी गया था कि एक टाइम था जब उसे उड़ना नहीं आता था, तो उसने अपने आप को मतलब दिखाया और उसने कि डाइव भी कर सकता है, सोर कर सकता है, कर्विंग कर सकता है. बहुत खुशी में वो चिल्ला रहा था एक बहुत हाई पिच आवाज में, ठीक है. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, the little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Okay, now अब वो थोड़ा नीचे आने लगा था, ठीक है, near the sea, एंड बिल्कुल एक सीधे डायरेक्शन में उड़ रहा था. अब वो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स नहीं था, वो बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रहा था, ठीक है. ओशन को बिल्कुल फेस कर रहा था, जिससे उसे इतना डर लग रहा था और वो डायरेक्टली उसे फेस कर रहा था. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. So उसके parents, उसके brothers and sister भी उसके पास आ चुके थे, ठीक है, green flooring पे, एंड वो उसे बुला रहे थे, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे बुला रहे थे. वो भी आया और उसने अपने जो पाँव थे, ठीक है, ग्रीन सी पे वो खड़ा हुआ. उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए, सैंक, डूबना. He screamed with fright. वो सडनली डर में चिल्लाया, चीखा, उसकी चीख निकली डर में, और उसने कोशिश की कि वो दोबारा उठे ऊंचाई पे, मतलब उड़े अपने विंग्स को फ्लैप करके. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन वो बहुत थक चुका था एंड वो कमज़ोर फील कर रहा था क्योंकि वो भूखा था. रिमेंबर 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं था क्योंकि वो डर रहा था उड़ने से. He could not rise, इसलिए वो उस वक्त नहीं उड़ सका. Exhausted by the strange exercise. Exhausted का मतलब होता है जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थकन होती है, ठीक है. तो अब जो इसकी strange exercise थी वो थी इसकी उड़ान. वो जो इसने उड़ना शुरू किया था उसे हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं एज स्ट्रेंज एक्सरसाइज. सो इस एक्सरसाइज के बाद वो बहुत थक गया था. His feet sank into the green sea and his belly touched it and he sank no further. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He made his first flight. So देखें उसके जो पैर थे अब वो सी में बिल्कुल डूब चुके थे. His belly, उसका जो पेट था, स्टमक, उसे छूने लगा था पानी को, लेकिन वो डूबा नहीं था, वो उस पर तैर रहा था, वो फ्लोट कर रहा था, ठीक है, फ्लोटिंग. एंड उसके चारों तरफ उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, सब उसके तरफ थे, उसकी फैमिली, और उसको शाबाशी दे रहे थे कि वेल डन, तुमने आज उड़ान की है, तुम उड़ चुके हो, तुमने उड़ना सीख लिया. एंड वो अपनी चोंच से उसको स्क्रैप्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े से दे रहे थे डॉग फिश के. वो भी एक टाइप की फिश होती है, ठीक है, वो उसे दे रहे थे एंड वो खा रहा था. एंड फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की. सो ये था हमारा पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक सी गर्ल के बारे में. ओके, एंड आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट. आपको हमें ये देखना है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है. देखो बच्चों, जो लाइफ में होता है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती हैं. सो इससे ना हमें डरना नहीं चाहिए.
हमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन मीन्स झिझकना। अगर आप झिझकते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। आप इस सीगल की तरह उस लेज के ब्रिंक पे, एज पे रह जाओगे और आपके सामने सभी आपसे छोटे आपसे बड़े आगे निकल चुके होंगे, ठीक है, एंड आपका मजाक उड़ाते रहेंगे कि तुमसे नहीं हुआ। सो हमें अपने अंदर करेज लाना चाहिए, हमेशा सब कुछ फेस करना होता है, हमें डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप वो उसके लिए आगे आए। देखिए, हमें ना कुछ सीखने से शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि कोई हमें करेक्ट कर रहा है, कोई हमें हमारी मिस्टेक्स बता रहा है। सोचो, अगर आपको आपकी मिस्टेक्स ना बताएं तो आप पूरी ज़िंदगी वही मिस्टेक करते रहोगे, है ना। सो आपको खुश होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए अगर आपको कोई आपकी मिस्टेक बताए, उससे आपको सीखना चाहिए। हमेशा सवाल पूछा करो, अपने अंदर कॉरेज लाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ कि आप सब कुछ फेस कर सको लाइफ में, ठीक है। एंड आप भी जल्दी ही अपनी सक्सेस की तरफ अपनी पहली उड़ान लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, take your first flight and I am always there to support you. Okay, thank you so much for listening. Bye bye.